Thank you, Ravinder sir. Which was produced in Tamil, was dubbed in different languages as well as in Hindi, and it was a sensational hit in the early years. Subsequently, Mani Ratnam also had a severe impact, and he created Roja and Mumbai, and these films also did pretty well in the northern circuit. Later on, you must have now seen in the last few years, our Telugu film industry makers, now Karnataka filmmakers, Tamil filmmakers and Malayalam filmmakers have also reached the attention of the national movie-going audience as well as OTT audience. Our films, both in theatrical and in OTT, have become very popular, and like recent times, of course, you know, we must have seen about Bahubali, and then RRR, Bahubali 2, KGF, and then again now, the sensational hit Kantara. Kantara is such a sensational hit. I believe this film was produced in a small budget, and it turned out to be a super duper hit in the box office. So now we have the producer director of Kantara here with us, and I'm going to have some interaction sections with them. And hello sir, good evening sir. Namaste. Hello, namaskara. Thank you. Kantarake ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬೆಂಬಲ, ಸಪೋರ್ಟ್, ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Sir, actually I also became a great fan of yours. I've been in the industry for 42 years and had the opportunity to introduce many young directors, and of course I feel proud to say that I was the one who introduced Mani Ratnam sir in his first Tamil film way back in 1980. Sir, I want to ask you, sir, how did you decide to take up the Kantara project? You can answer in Hindi or Kannada. if you feel comfortable. ಕನ್ನಡ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ದಾಟ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಮೋಷನಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಸೊ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎನಿವೇಸ್ ನನಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇಟ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕಾಂತಾರ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಬಂದಿದ್ದು. ಬೇಸಿಕಲಿ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಶುರುವಾದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಐ ಥಾಟ್ ಇದು ಬರೀ ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಶಿವ ಆ್ಯಂಡ್ ಮುರಳಿಯ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಅವರ ಈಗೋ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ನೇಚರ್ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸಿನಿಮಾಲಿರುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಏನೇನಿತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನನ್ನ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ಡಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್. ಸೊ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ಡಿಂದನೂ ತುಂಬ ಫ್ಯಾಸಿನೇಟಿಂಗ್ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ದೈವಾರಾಧನೆ ಆಗ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಚರನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಬೇಕನ್ನುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ತಲೆಗೆ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಫ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಸೊ ಒಂದು ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತು, ತುಂಬ ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕೂಡ, ಮೋರ್ ರೀಜನಲ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ರೀಜನಲ್, ಎಷ್ಟು ರೂಟೆಡ್ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ನಾವು ಆಡಿಯನ್ಸಿಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಜನ ಅದನ್ನು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ನ ದಾಟಿ ಆ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಸಿನಿಮಾ ತಲುಪುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಡಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಸೊ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಂತಾರ. Sir, being a writer and director of Kantara, what made you want to play the lead role in the film, sir? ಇದು ಚಿಕ್ಕು ಸರ್ ಹಿಂದಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಹಿಂದಿ ಹಿಂದಿ ಹೇಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್? ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
सो बचपन से मुझे एक शौक था कि ऐसा कुछ कैरेक्टर प्ले करना है करके। सो ये सब्जेक्ट लिखा मैं प्ले करने के लिए। सो इसमें कुछ अलग थॉट नहीं था। ये कुछ कहानी लिखने के बाद एक स्टार्स को उसमें कास्ट करके डायरेक्ट करूँ करके। लेकिन ये कहानी में मैं एक्ट करना है और शिवा का जो कैरेक्टर है बहुत साल से मेरा दिमाग में था ऐसा कुछ कैरेक्टर प्ले करना है। लेकिन क्या हुआ कि मैं एक्टिंग का चांस नहीं मिला। सो डायरेक्शन में सीरियस हो गया, तो डायरेक्शन किया, 3 फिल्म खत्म किया। उसके बाद सरकारी हिरिय प्राथमिक शाले कासरगोड था मैं लास्ट फिल्म। वो सिनेमा के बाद मुझे एक फिल्म आया बेल बॉटम, उसमें मैं लीड था। वो भी एक लो और मीडियम बजट का फिल्म था, एक कॉमेडी डिटेक्टिव फिल्म था। उसके बाद मुझे रोल्स आ रहा है पूरे कॉमेडियंस का, पूरे कॉमेडी कैरेक्टर और छोटे छोटे एक अंडरडॉग जैसा कैरेक्टर, ऐसा कुछ कैरेक्टर्स आ रहा था। तो मैं सोचा ऐसा गया तो मैं एक कॉमेडियन बन के रहूँगा, तो कुछ एक्सप्लोर नहीं कर सकता हूँ जो अंदर जो एक एंग्री एंगमैन है जो वैसा कुछ एक्सप्रेशंस मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। सो इसलिए मैं खुद लिखने के लिए चालू किया, ऐसा कुछ कैरेक्टर एक्सप्लोर करना है। और जो कमड़ा था वो मेरा घर में हम लोग मेरा फैमिली करते थे। सो और दैवाराधने जो था मैं बचपन से देख के आया था। बेसिकली आई वाज एन यक्षगान आर्टिस्ट। सो फ्रॉम माई 6th स्टैंडर्ड मैं यक्षगान करके आया था। तो ये सब मुझे एक कैरेक्टर में एक्सप्लोर करना था। तो इसलिए मैं सोचा कि ये सही सब्जेक्ट रहेगा। जो कांतारा में जो शिवा का जो कैरेक्टर है और उसका बाप का जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर का नाम आपको ज़्यादा पता नहीं है, एक सीन में हम बताते हैं। ये कैरेक्टर का नाम आपको बताना पड़ेगा। उसका बाप का नाम है अन्नापालू। ये दोनों कैरेक्टर मुझे एक्सप्लोर करना था, तो इसलिए मैं सोचा इस फिल्म में कर देते हैं। That's how we decided to do this film. The folk culture that is shown in the movie specifically belongs to the culture of a specific region in Karnataka. Did you expect that other audiences who are not from Karnataka would be able to connect to it the way you wanted them to do? पहला जो प्रश्न था उसमें थोड़ा तो बताया था इसके बारे में। ये हमारे भारत एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री मानता हूँ मैं, एक एग्रीकल्चर बेस्ड देश मानता हूँ। जो हमारा जो रिचुअल्स, बिलीफ, जो रूटीन, आवर वे ऑफ लाइफ, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन आवर एग्रीकल्चर। मतलब सब मिलके है, सब उसमें जुड़ा हुआ है। मैं सोचा एक कोस्टल कर्नाटका का एक दैवाराधने के बारे में, एक भूतकोल के बारे में मैं फिल्म में बता रहा हूँ। लेकिन पूरे देश में हर गांव में ऐसा कुछ रिचुअल्स रहता है। आज मैं गोवा का सीएम को मिल के आया इधर, वो भी बता रहे थे गोवा में वीरभद्रा, शायद वीरभद्रा एक दैव जैसा मानते हैं इधर। और तमिलनाडु उंग ऊर्ले पातीங்கன்னா वीरस्वामी, कावल स्वामी, कावल दैवम இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும்। सो ऐसा हर गांव में रहता है जो उधर का एक शक्ति को मान के, वो एक नेचर के अंदर का एक शक्ति है वो मान के लोग बिलीव करते हैं। उसमें बहुत बड़ा एक यूनिवर्सल मैसेज भी है। हम लोग ये कोस्टल कर्नाटक में और तुलुनाडु और मंगलुरु में हम ये दैव को ऐसे मानते हैं कि एक दैव के सामने जो अपर कम्युनिटी लोअर कम्युनिटी का ये नहीं है, सब समान है। सो एक इक्वालिटी रहता है और इट्स अ ब्रिज बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन। तो एक कॉन्सेप्ट है। अगर दैव गोला रहता है तो किसी कंट्री में रहते हो तो वो सब लोग, पूरे फैमिली लोग आना चाहिए, मिलना चाहिए। उधर भी एक अनडिवाइडेड फैमिली का भी एक कॉन्सेप्ट मिला। ऐसा एक यूनिवर्सल थॉट प्रोसेस है उसमें। तो इसलिए मैं सोचा ये अगर कहानी कनेक्ट हुआ तो ये रिचुअल्स, उन लोगों का जो रूट, उन लोगों का जो कल्चर क्या है उधर कनेक्ट होना चाहिए, वो करेक्ट हो जाएगा अगर। Yes, sir, you're right, sir. It has reached almost every part of the country, and they have really, accepted your concept very well, sir. And sir, I want to ask you, are you an actor or director? What is your priority, sir? Direction, sir. What kind of concepts must be explored in a pan-Indian film? And what is the present situation of Kannada cinema?
Can we anticipate more pan-Indian films from Sandalwood? 100%। लेकिन मैं ये पैन इंडिया का कॉन्सेप्ट ज़्यादा मानता नहीं हूँ। एक अभी जो आप बता रहे थे, अभी लैंग्वेज बैरियर छोड़ के लोग ऐसा है कि अभी एक बॉलीवुड सैंडलवुड ये सभी ऑडियंस ने किया है, लोग किया है, लेकिन लोग अभी इंडियन रीजनल फिल्म जैसा देख रहे हैं। सो एक कर्नाटका का, एक कन्नड़ा रीजनल इंडियन सिनेमा ऐसा बता सकते हैं हम लोग। सो ऑडियंस का पर्सपेक्टिव ऐसा जा रहा है, तो एक फॉर्मूला नहीं है ये एक फिल्म आया ऐसा किया तो ये पैन इंडिया हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मैं सोचा कांतारा करने समय में पहली बार मैं मेरा बीवी से बात कर रहा था, पहली बार इतना बहुत बड़ा बजट में फिल्म किया हूँ, तो वो बहुत प्रेशर है क्योंकि मैं लास्ट फिल्म सरकारी किया 1.4 करोड़ में, तो ठीक है। और फिल्म मेरा डायरेक्शन किया एवरेज बजट और मीडियम बजट में मैं फिल्म किया था। पहली बार इतना बड़ा बजट, इतना बड़ा स्केल, जो इतने लोग आते थे वो मैं देख के डर रहा था। मतलब भोपाल फिल्म के पास बहुत सारे पैसा है, केजीएफ टू की है, तो वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे जो एक, मैं भी एक प्रोड्यूसर हूँ ना, वो एक प्रेशर था। जो बाद में फिल्म रिलीज होने के बाद कन्नड़ा लोग इतने वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड किए तो बाहर स्टेट को भी रीच हुआ हो। सो बाद में हम लोग तुरंत 2 हफ्ते से पूरे पिक्चर डब किए हिंदी, तेलुगु, तमिल और मलयालम में। तो उधर जो लोग ये डबिंग फिल्म जैसा देखा नहीं, जो हिंदी में लोग देखा है, अब दूसरा लैंग्वेज दूसरा स्टेट में ओरिजिनल उनका एक भाषा में फिल्म देखने जैसा देखा है फिल्म में, वो लोग वर्ड ऑफ माउथ और स्प्रेड किए। तो मैं उसके बाद ये 5 लैंग्वेज में रिलीज होने के बाद और एक बार मैं मेरा बीवी से बात कर रहा था, देख पहली बार मैं सोचा एक बहुत बड़ा बजट का फिल्म कर रहा हूँ, किया हूँ करके, वो एक प्रेशर है। आज देखो एक पैन इंडिया फिल्म बन गया, वो भी लो बजट हो गया करके। तो ऐसा एक ये था, मतलब ऑडियंस को कंटेंट कनेक्ट होना जरूरी है। सो उसके अलावा कुछ फॉर्मूला नहीं है कि ये फिल्म पैन इंडिया जाएगा, ये फिल्म लोगों को पसंद आएगा, वो हम जज नहीं कर सकते। कंटेंट कनेक्ट होना चाहिए बस। I just want to ask you one more question, sir. और एक लास्ट एक प्रश्न था आपका, सैंडलवुड से और फिल्म आएगा करके। बहुत सारे इंडस्ट्री से और पैन इंडिया आएगा, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स को वो प्रॉब्लम भी हो जाएगा, ऐसा ही कुछ बहुत सारे फिल्म से हिट भी हो जाएगा। So will you do films in other languages besides Kannada? मुझे कन्नड़ा फिल्म करना चाहिए, करना चाहता हूँ मैं, क्योंकि मैं उधर से आया हूँ। अभी मुझे सारे दुनिया में, सारे इंडिया में ये लैंग्वेज का जो बैरियर हटा के जो कांतारा देखा है, इतना लव दिया है, इतना प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है, मैं रेस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन मैं आया कर्नाटक से, कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री और कन्नड़ा लोग मुझे इतना एक स्टेज दिया है, एक प्लेटफॉर्म दिया है मेरा कहानी उनको बताने के लिए। सो वो मेरा कर्मभूमि है, मैं उधर ही फिल्म करना चाहता हूँ। वो अगर दूसरे लैंग्वेज और दूसरे स्टेट में, जो हिंदी हो, तेलुगु, तमिल, मलयालम हो, वो लोगों को रीच हो जाएगा, तो उन लोगों को पसंद आएगा, तो मैं डब करके रिलीज कर देता हूँ। लोग ऐसे ओपनली ले रहे हैं अभी। You're right, sir. Sir, I just want to ask you one more personal question. I believe Mr. Rajnikant sir saw your film and he was so impressed, and I believe he wanted to meet you. I heard you had a personal meeting with him. Suppose if he offers to do a film for you, if it is not necessarily in Tamil but a pan-Indian film, will you do with Mr. Rajnikant? யார் பண்ண மாட்டேங்க சார், தலைவர் डेफिनेटली। एंड और एक इमोशनल कनेक्शन है कि वो कर्नाटक से गए उधर, सो इट्स लाइक அவர் அங்கே சூப்பர் ஸ்டார் இருக்கலாம், இருந்தாலும் நம்ம ஒரு அப்படி ஒரு ஃபீல்। Right, sir. How do you choose the subject of your movies, as ideas vary greatly from your first success, Ricky to Kantara? मैं ज़्यादा ऐसा सब्जेक्ट करना है करके ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, एक फ्लो में जाता हूँ मैं, ज़्यादा पढ़ता भी नहीं हूँ मैं। एक कन्नड़ा मीडियम में पढ़ के एक बिलो एवरेज स्टूडेंट था मैं स्कूल और कॉलेज में। अभी भी आज पूछ रहे थे आप लोग इंग्लिश में बात करो करके,
पूरा सोच रहा हूँ कन्नड़ में, अभी हिंदी थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ, तो सोता हूँ कन्नड़ में, खाता हूँ कन्नड़ में, सब कन्नड़ में, ठीक है। तो ज़्यादा सोसाइटी में कनेक्टेड हूँ मैं। बाहर क्या जा रहा है, लोग कैसे, उनका जो थॉट प्रोसेस कैसे चल रहा है, लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, पॉलिटिकली क्या जा रहा है, ये सब ज़्यादा देखता हूँ मैं। उधर से सोसाइटी से कुछ लेके आके फिल्म में दिखाने के लिए ट्राई करता हूँ हर बार। Do you believe in the beliefs related to the rituals depicted in your film Kantara? डेफिनेटली सर, 100% वो बिलीफ चाहिए हमको। हम एक इंडियन होके वही हमारा मूल है, वही है। क्योंकि मैं वैसे एक फैमिली बिलोंग्स टू दैट फैमिली, हम लोग वो रिचुअल्स करते हैं, हम मानते हैं, पालते हैं, हर साल हम लोग करते हैं। डेफिनेटली आई बिलीव, मैं बिलीव किया इसलिए लोग बिलीव किए सर। Could you elaborate on the pre-production and post-production process of Kantara's film? I'd be interested to know what is up, please. आई थिंक वो पूरे डायरेक्शन टीम को नाइटमेयर था, क्योंकि हर सेकंड हमको पता है क्या चल रहा है करके। उतना एक प्री प्रोडक्शन लास्ट ईयर अप्रैल 27 मुझे एक ये आइडिया आया, उधर से हम लोग सिर्फ 4 महीने लिए, 3 वर्जन लिखा विद डायलॉग्स एंड पैरेलल प्री प्रोडक्शन किया है, क्योंकि मुझे सितंबर में शूटिंग जाना चाहिए था। तो बारिश खत्म होते ही हम एक 3 सीजन चाहिए था, एक रेनी और विंटर और समर। सो मेरा गांव में पूरे फिल्म शूट किया है, उधर ही हमने लिखा था और उधर ही प्री प्रोडक्शन किया है। सब लोकेशन, हर शॉट्स का जो लोकेशन बचपन से देखा था मैं। सिर्फ मैं आर्ट डायरेक्टर और डीओपी को मेरा टेक्निकल टीम को बताना चाहिए था कि इधर इधर हम लोग ये सीक्वेंस शूट कर रहे हैं। तो हर दिन हम लोग डिस्कस करते करते लोकेशन में घूम के बात करके ऐसे कर रहे थे पूरे प्री प्रोडक्शन। और एक ये फिल्म का जो प्रोसेस था उसमें मैं ये सब सोचा नहीं, वो सारे इंटरव्यू में बोला था मैं, क्योंकि उस समय मुझे करना था। क्योंकि सुबह उठ के मैं पूरे फिल्म में एक्शन जो था वो विदाउट डूप में किया था खुद। सो इसलिए मैं एक मिक्स मार्शल आर्ट ट्रेनर को लेके सीधा गांव लेके गया, मेरा गांव में। उधर ही सुबह उठ के हम लोग प्रैक्टिस करते थे। उसके बाद जो दूसरा ऑडिशंस करते थे दूसरा आर्टिस्ट को, मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट आर न्यू कमर फ्रॉम दैट मंगलोर थिएटर और बैंगलोर थिएटर। सो उन लोगों को हम लोग सेलेक्ट हुआ तो उनको वर्कशॉप चालू करते थे। सो वो भी करना चाहिए था। उसके बाद हफ्ते में एक बार सीधा जाके जो कमड़ा का ट्रेनिंग करना था मुझे, वो सुबह जाके शाम तक पूरे दिन हम ट्रेन करते थे। सो इस बीच में पैरेलली सेट जा रहा था, जो काड़बेटू का जो विलेज है वो पूरा सेट जाके उधर क्या करेक्शन करना है, क्या करना है, वो सब उधर डिस्कशन हो रहा था। तो पैरेलली हम लोग 3-4 महीने डे नाइट वर्क किया प्री प्रोडक्शन में। उसके बाद शूट किया 96 डेज हम लोग शूट किए, मार्च तक शूट किए। मार्च के बाद मैं बैंगलोर आया पोस्ट प्रोडक्शन करने के लिए। उधर से 24/7 ऐसे कंटिन्यू हो गया वापस। सो लास्ट में मतलब हमको 3-4 महीना था रिलीज करने के लिए, डेट अनाउंस भी किए। करने के बाद पैरेलली म्यूजिक एडिट 3-4 वर्षन हम लोग एडिट कर रहे थे, फाइनल एडिट कर रहे थे। तो लास्ट 3 मंथ्स में हम लोग पूरे VFX का पोर्शन करेंगे। सो दैट इज इम्पॉसिबल। वो लोग एक रिलीज के 15 दिन पहले मैं कोच्चि गया था। कोच्चि में पोस्ट प्रोडक्शन जरूरत VFX करते थे हम लोग। उधर जाके स्टूडियो ओपन करके ऐसा देख रहा था मैं, पूरे VFX आर्टिस्ट लोग पूरे ज़ॉम्बी जैसा दिख रहे हैं मुझे। वो लोग सोए रहे थे क्योंकि डेट अनाउंस किए थे और कंटेंट में इतना करेक्शंस बोल रहा था मैं। तो ऐसा कुछ पूरे टीम को एक नाइटमेयर था वो। अच्छा, हम लोग अपलोड किया फिल्म। अपलोड करने के बाद 4 रील में कुछ पैचेस आ गया। रातों रात मुझे प्रोड्यूसर को फ़ोन करके वापस रीअपलोड करने के लिए रिक्वेस्ट किया। वो करके सीधा बैंगलोर आया, रिलीज हो गया। हम सोचे कि अच्छा काम खत्म हो गया करके, अभी कुछ नहीं, इधर उधर इंटरव्यू, वही इंटरव्यू तो शुरू से आज तक आप कैसे क्या क्या प्रश्न पूछ रहे हैं वो सेम आंसर दे रहे हैं। तो क्वेश्चन भी वैसे रहता है, सेम रहता है। तो उसमें नया कुछ नहीं है करके। सो वो तो
फिक्स था। बाद में इधर आके देखा तो पिक्चर इतना बड़ा हिट हो गया, वापस इधर से मुंबई भाग गया मैं हिंदी डबिंग के लिए। तो उतना तो हिंदी उतना ठीक नहीं है, मतलब मैनेज कर सकता हूँ, लैंग्वेज के ऊपर मेरा होल्ड नहीं है। तो उधर का जो लोग हेल्प लेके वो कर रहे थे। बाद में प्रोड्यूसर बोले कि नहीं तेलुगु में भी रिलीज कर रहे, बाद में तमिल में भी रिलीज कर रहे, मलयालम में भी। तो उसके बाद और एक टीम बना के हम लोग हर स्टेट को भेज दिए लोगों को, वो किए। उसके बाद आया ठीक है प्रमोशन जाओ, वही सेम लैंग्वेज प्रॉब्लम, ठीक है हिंदी में मैनेज करते। थोड़ा 3-4 महीने में बॉम्बे में ऑफिस बॉय का काम करता था, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा हिंदी आया, ठीक है। वो पूरा खत्म होके ठीक है अभी मैं फैमिली के साथ एक ट्रिप जाता हूँ, एक शॉर्ट ब्रेक लेता हूँ, ऐसा सोच रहा था। इतने सारे ट्वीट्स आए, आप लोग ये तुलुनाडु के एक कल्चर में फिल्म किए, आप तुलु में क्यों नहीं कर रहे हो? अच्छा तुलु में डब करो, वापस अभी हम रिलीज कर रहे तुलु में, अभी भी काम खत्म नहीं हुआ मेरा प्रोसेस है। वही मैं सोच वही था, गो विद द फ्लो, रियल लाइफ में वो फ्लो ही जा रहे अभी। Sir, are there any characters in the Kantara film that are inspired by real life people? बहुत सारे कैरेक्टर्स है। शिवा, बहुत सारे शिवा को देखा था मैं, और जो धनी का कैरेक्टर था अच्युत कुमार ने किया, और किशोर सर। मैं बचपन से जो मतलब जो 80s में फॉरेस्ट एक्ट हुआ था, लोगों को उतना आइडिया नहीं था फॉरेस्ट एक्ट क्या है। ये जो फॉरेस्ट लोगों का है, जो उधर अंदर जो ट्राइब्स जो रहते हैं उनका है करके, लेकिन डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट आके ये हमारा है करके क्लेम किया, तो वो लोगों को वो एक बहुत कॉन्फ्लिक्ट में थे। जो 90s में लोगों को थोड़ा आइडिया मिलने के चालू हुआ, तो बहुत सारा फॉरेस्ट ऑफिसर्स गांव आ जाते, जो एनक्रोचमेंट का जो प्रॉब्लम था, बहुत सारे इश्यूज, ऐसा कुछ बहुत सारे कैरेक्टर्स। और रामपा का कैरेक्टर है वो, ऐसा बहुत सारे कैरेक्टर को मैं बचपन से देख के आया था। ऑलमोस्ट 80% ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम माय विलेज ओनली। हाँ हाँ, दैट विलेज ओनली। मैं क्या क्या किसको देखा था, उन लोगों को मैं रिक्रिएट करने के लिए ट्राई किया था। Did you have any sessions for training your, your artists who are from your villages? Did you give them special training for? हाँ, 3 महीने हम लोग वर्कशॉप लिए। वो वर्कशॉप बहुत अच्छा था, मतलब जो कॉस्ट्यूमर को मेरा फिल्म का कॉस्ट्यूम डिजाइन मेरा बीवी की है, लेकिन कॉस्ट्यूमर लोग जो चप्पल लेके आते हैं ना, वो नए नए लेके आते हैं। ये गांव वाले हैं, ऐसा बहुत साल से ऐसा चप्पल पूरा पुराना चप्पल जैसा दिखना चाहिए था। इसलिए हम लोग क्या सोचा कि वर्कशॉप से उन लोगों को चप्पल दे देते करके। वो पुराना वाला वो पैरागॉन चप्पल आता था ना, तो ब्लू कलर व्हाइट ब्लू, जो वर्कशॉप में कौन कौन ये ऑडिशन में सेलेक्ट होते चप्पल दे देते। ये एक हफ्ते के नए नए लोग आते थे ऑडिशन के लिए, वो बाहर डिस्कशन कर रहे थे। एक होम स्टे में स्टे किया था हम लोग, ऊपर एक ऐसा एक बड़ा हॉल था, उधर डिस्कशन था, मतलब चप्पल मिला तो कैरेक्टर मिला। तो बात है कि मुझे कैसे ही ये चप्पल चाहिए करके लोग प्लान करते थे उधर बाहर सुन रहा था उधर। तो 3 महीने हम लोग सब लोग को वर्कशॉप दिए, और खुद मैं भी उनके साथ रिहर्सल करके बाद में हम शुरू हर फिल्म ऐसे ही करते थे। How were music and BGM composed in the film Kantara, sir? And the music director had done a phenomenal work, sir. And as a producer who was worked with many music directors, I was surprised to hear that he is a youngster. And was it the first film, sir? No, बहुत सारे फिल्म किए। हमारा टीम से ओडिदोर टूर्नामेंट एक फिल्म किया था, वो पहला फिल्म था। किरिक पार्टी भी वही किया था, वो बेल बॉटम और सरकारी का बैकग्राउंड स्कोर भी उन्होंने किए थे। और रिसेंटली विक्रांत रोना सुदीप सर का फिल्म वो भी वो किए थे। Kantara also Apu sir's documentary. So म्यूजिक हम लोग ये एक ऐसा एक कॉन्सेप्ट में एक फोकलोर जैसा प्रेजेंट करना चाहता था। सो इसलिए मैं अजनीश को बोला सीधा मेरे साथ गांव आ जाओ, इधर का जो ट्राइब लोग हैं वो लोग जो फोक म्यूजिक बजाते हैं, उधर तुरी कुणिता बोलते हैं हम लोग, और चंडे और नादस्वरा तासे बोलते हैं जो दैव कोल में करते हैं। ऐसा फोक इंस्ट्रूमेंट और फोक आर्टिस्ट को बुला के 2 दिन हम लोग मैंगलोर में एक ओपन एयर में पूरे रिकॉर्ड किए। रिकॉर्ड करने के बाद हम लोग बैकग्राउंड स्कोर प्लान किए। सो ऐसा एक रिसर्च था उसके। Video was really phenomenal, sir.
And the climax of Kantara is something that really must be mentioned. Many of us believe that the way the conclusion was produced determined the success of the entire film. What were your thoughts about the climax? And लोग का क्या थॉट है वो सेम थॉट है. मतलब क्लाइमैक्स एक इम्पैक्टफुल होना चाहिए एक फिल्म में. जो लोग लेके जाते हैं बाहर, जो टेक अवे होता है वो क्लाइमैक्स से होता है. सो हर बार वो सोचता हूँ मैं, स्पेशली इन दिस क्लाइमैक्स इट शुड नॉट लाइक, मतलब एक भगवान के ऊपर एक बिलीफ के ऊपर एक फिल्म किया तो पहले जो फिल्म्स थे वैसा कुछ होना नहीं चाहिए. और बिलीफ भी कनेक्ट होना चाहिए, लोग भी बिलीव करना चाहिए, और विजुअली एंड स्टोरीज ऑल्सो क्या कहना चाहते हैं हम लोग वो प्रॉपरली कंक्लूजन मिलना चाहिए. वो एक सोच था. और क्लाइमैक्स के बारे में जो गुलिका का जो पोर्शन है, जो प्रोसेस होता है उस समय, उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करता हूँ मैं. वो एक्सपीरियंस जैसा लेना चाहता हूँ. और एक रिक्वेस्ट है, बहुत सारे लोग हैं इधर, मीडिया भी है ना, कैमरा भी है. फिल्म रिलीज हुआ उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट किया था ऐसा कुछ स्टेज में और कुछ नौकरी करना और टाइप का, क्योंकि एक सोसाइटी का एक कम्युनिटी का बिलीव और वो लोग वो प्रोसेस करते हैं. मतलब तो ऐसा कुछ मत करो कि अभी इधर उधर फंक्शन में कुछ पुलिस फंक्शन में देखा मैं, और कुछ स्टेज में और वीडियो बनाना, ऐसा कुछ करते हैं लोग. तो वो भी एक रिक्वेस्ट है मेरा, मत करो करके. So I saw the film, sir. I saw the film, and then I thought I should take my family. And especially the last 30 minutes was spellbounding, and so I went. I took my family. Then afterwards, I wanted to see the film again in a single theater in a suburban center. So I went for the third time. That was the third week, sir, and I was surprised that the same response was there also in the suburb centers of Chennai. Thank you. And best part was, as I was walking out the exit, there were youngsters were coming out, and every one of them, believe me, they were talking about the climax, and then they were talking about, most of them said, I got goosebumps, and that was the compliment you got from the film, sir. Excellent work, sir. Can you share the technique used by you while writing the screenplay to blend the gold element, culture and fiction in Kantara? I think there is no technique, sir. So मैं फ्लो में जाता हूँ और कहानी एक आइडिया मिला तो उसमें बहुत सारे लेयर्स लिखे आने के लिए सोचता हूँ. वो भी मैं ज़्यादा जो मैं देखा था मेरा गांव में और सुना था, ज़्यादा क्या ना, हमारा ये दैवाराधन में पाड़दना बोलते हैं, एक फोक सॉन्ग जैसा रहता है. उसमें बहुत सारे कहानियाँ आते हैं दैव के बारे में, एक हजारों दैव है. सो वो जैसा एक कहानी मुझे बोलना चाहिए था इस फिल्म में, जो ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಚ್ಚಿಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ 3 ಆಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾನು ನಂಬಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅಚ್ಚಿಕತೆ ಹೇಳೋದು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ. அந்த பாட்டி சொல்கிற ஸ்டோரி சார், அதுதான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். ಸೊ ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಆ ವಿಷಯನ ಅಷ್ಟೇ, सॉरी वो गांव में क्या क्या देखा था बचपन से, वो पूरा स्क्रीन प्ले में लेके आने के लिए सोचता था. Do you believe any specific style of acting represented as Kannada or Karnataka? No sir, ऐसा कुछ नहीं. So what is your standpoint about rational thinking and religious beliefs used in the cinema? बोथ द वेज लोग बिलीव करते हैं, वो भी बिलीव करते हैं, ये भी बिलीव करते हैं. उन लोगों का जो थॉट प्रोसेस क्या है उसके हिसाब से. कमल सर ने फ़ोन किया मुझे. कमल सर फ़ोन करके कम से कम 20 मिनट्स बात किए मुझे फिल्म देखने के बाद. वैसा ही कुछ बोल रहे थे कमल सर, लेकिन अंदर से अंदर हम बचपन से हमको ये रूटेड है, जो हमारा जो कल्चर, रिचुअल, हमारा बिलीफ सिस्टम, ये सब रूटेड है. लेकिन आगे आते आते हमारा थॉट प्रोसेस चेंज होता है बेस्ड ऑन पॉलिटिक्स और एजुकेशन, सोसाइटी, कुछ भी हो. तो वो उन दोनों का अलग ही रहता है, लेकिन अंदर का जो कोर है वो कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है. कोर में सब लोग का एक ही बिलीफ होता है. Sir, how is
regional cinema is transverse in various language barriers. What is the reason for regional cinema to generate national-wide blockbuster revenues? मतलब वही बोल रहा था, मतलब मे बी हम लोग ज़्यादा मे बी वर्ल्ड सिनेमा और हॉलीवुड फिल्म्स जो देखते थे उसमें एक फॉर्मेट रहता है, तो इस फिल्म ऐसा होना चाहिए, एक्शन सिनेमा कमर्शियल फिल्म ऐसा होना चाहिए करके। लेकिन वो क्या हो रहा है, कुछ तो ओके, सो हॉलीवुड सिनेमा ये तकने अलग अलग बोल रहे। तो उधर हम लोग ज़्यादा इन्फ्लुएंस उधर होते थे, तो वो ऐसा फिल्म लेके आके इधर लोगों को हम प्रेजेंट करने के लिए ट्राई करते थे। ये पहले नहीं, आई थिंक लेट 80s अर्ली 90s के बाद। उससे पहले जो इंडियन सिनेमा था, बहुत सारे डायरेक्टर्स मीडियम था, वो राइटर्स मीडियम था, ज़्यादा राइटर्स को इम्पोर्टेंस देते थे, ज़्यादा डायरेक्टर्स पर ज़्यादा थे। सो लेट 90s अर्ली 90s के बाद जो फिल्म्स आना शुरू हुआ, ज़्यादा वेस्टर्न फिल्म्स का जो इन्फ्लुएंस ज़्यादा था। लेकिन लोगों को वो अभी क्या है ना, अभी जो OTT प्लेटफॉर्म्स आया, लोग किसी कंट्री का भी फिल्म, किसी लैंग्वेज का भी फिल्म देख सकते हैं। तो ऑडियंस को वो एक लिमिटेशन नहीं है। पहला क्या था कि एक फिल्म फेस्टिवल आना था, हमको एक वर्ल्ड सिनेमा देखने के लिए फिल्म फेस्टिवल आके देखना चाहिए था। जो आपके जो मेंबर्स जो लोग हैं, फिल्म होने के बाद कुछ कॉपी मिला, उधर हम लोग कॉपी करके कर लेते थे, ठीक है। सो लेकिन वैसा फिल्म लोग अभी हॉलीवुड फिल्म या दूसरे लैंग्वेज में देख रहे हैं। लेकिन मैं क्या सोचता हूँ, अगर मैं मेरा गांव का जो रीजनल कहानी लेके आया, वो आपका किसी OTT प्लेटफॉर्म में नहीं मिलता है, आपको किसी वर्ल्ड सिनेमा में नहीं मिलता है, सिर्फ मेरे गांव में मिलता है। वो लेके आके मैं लोगों को पेश किया, तो प्रेजेंट किया, लोगों को ज़्यादा फ्रेश लगेगा। तो एक नया कहानी जैसा, कहानी में कुछ नया नहीं रहता है, सिर्फ ट्रीटमेंट रहता है। I think I'll just move on to the next one, sir. The regional cinema has created a significant international market for itself. Thus, the global audience warming up to our culture identity. Before you answer, sir, I just give you a small lead, sir. I was shooting for a film with Ajit sir in Serbia, and after the day shoot, I was down at the restaurant, and one of the bearers, is a Serbian and did not speak well in English. He walked up to me and he came and said, "Bro, you're from India?" I said, "Yes." Then he immediately said, "Wow, very good." So that's how the regional films and Indian films have reached now the international market. So now your response to it. That is the power of cinema, sir. It is not only Indian cinema, that's the power of cinema. अगर सिनेमा लोगों को पसंद आया तो किधर भी रीच होता है, वो बैरियर नहीं है अभी, लिमिटलेस। वही मैं प्रीवियस वही बोल रहा था, मतलब अभी लोगों को इतने अच्छा एक प्लेटफॉर्म्स मिला फिल्म देखने के लिए, वो रीच ज़्यादा हो रहा है अभी। तो हर घर में फिल्म देख रहे हैं अभी। मतलब इससे पहले जो 20 साल था, अगर इस तरफ उनको क्या चाहिए था, वो भी सिनेमा नहीं आ रहा था, कभी कभी आ रहा था, ऐसा नहीं है कि। तो और दूसरा, उन लोगों को घर में देखना है तो वो ऐसा प्लेटफॉर्म ही नहीं था। अभी ज़्यादा मौका मिल रहा है लोगों को, फिल्म ज़्यादा रीच हो रहा है। जो कंटेंट में दम है तो दुनिया का किधर भी वो रीच होता है। I believe Kantara is also, I don't know, I heard that it is being dubbed in some foreign language films. Is that right, sir? I think हो रहा है सर। This is as a producer, I want to ask you a question, sir. One last question. How does a regional producer analyze various markets before arriving at a budget? मतलब कहानी क्या डिमांड करते हैं तो वो बजट डालना पड़ता है सर। उसके आगे हम अभी पैन इंडिया करते हैं, तो एक फिल्म ऐसा स्केल में करना है, वो सोच के हम नहीं कर सकते। बेस्ड ऑन दैट स्क्रिप्ट वी हैव टू डिसाइड द बजट। सो मैं हर बार वही सोचता हूँ कि छोटा बजट हो बड़ा बजट हो, वो ऑडियंस को फर्क नहीं पड़ता है, उन लोगों को कंटेंट कनेक्ट होना चाहिए बस। सो
फिल्म करने समय हम लोग अरे पैन इंडिया करते करके फोकट में ऐसा बजट ज़्यादा करना, वो सब मतलब उधर ही लॉस हो रहे हैं ना आपको। सो वही मैं बोल रहा था अभी, मुझे पैन इंडिया फिल्म का कॉन्सेप्ट में भरोसा नहीं है। सो इस वो लोग मिसलीड भी होते हैं, लोग मतलब ऑडियंस नहीं, प्रोड्यूसर्स जो फिल्म करते हैं तो इतना बहुत बड़ा बजट में फिल्म किया तो रीच होता है, वैसा कुछ नहीं। लोग वो गलत कर दिया ना। अभी कांतारा में बजट के बारे में किसी ने पूछा नहीं, उनको कनेक्ट हुआ, देख लिया फिल्म। That's true. You're right, sir. 100% right. And I think with this we end the question and answer sessions, and then I'm sorry, we move on to the question and answer session. And sir, thank you very much, sir. It was great to have an interaction with you. Especially, I wanted to meet you after seeing the film, and I'm glad if he has given me an opportunity to meet you here. Wish you all the best, and I also wish that you do films in other languages as well, sir. Thank you. Thank you so much, sir. I hope मैं आपको क्या क्वेश्चन से सही तरीके से आंसर किया हूँ शायद। सरिया रीति उत्तर ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ। Thank you. ಕೇಳಿ 1 minute, sir. Sir, one at a time. The gentleman there with the white t-shirt. I have acted in your serial 500 episodes. Yes, yeah, I remember now. Thank you. Sir, I can shout. Please. I have seen the film 3 times. Thank you. It was extraordinary. Thank you, sir. But I have some other doubts. For example, the films, your film story, you say it's your culture and your village. But if you look at it, you're from Kasaragod. No, I'm from Kudapur. Okay, is it somewhere nearby? Yeah. But 90% of the cultural rituals, they almost exactly look like your film, where this Kerala culture, folk culture, religious culture has slowly immigrated from Kasaragod to Kundapura. So, No. so thousands of years. About film, I didn't say anything. No, it's about culture only. Daivarajane, it has thousands of years history, and in Kerala they call it as Tayyam. It is not Buddha. Indian culture. Exactly. So ये हर गांव में रहता है, दूसरे तरीके से रहता है। I'm just clearing my Emotions and beliefs से। I'm just clearing my and when the god or goddess in Tamil, when I sing, many of the lines are not subtitled. Particularly when the god the god Avesha Bandhavana, ಆವಾಗ ಅವರು ಮಾತಾಡೋದು ಯಾರು ಡಬ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. I don't know why. All songs are beautifully rendered, and that was intentional. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ದೈವ ಅಲ್ಲಿ ತುಳುವಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ. ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲೂ ದೈವ ತುಳುವಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ದೈವದ ಭಾಷೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು. Thank you. So one at a time, please. Rishabh sir, will the lady there speak and then? ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಸರ್ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ ಅವರು. ನಮಸ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇದೆಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜೊತೆಗೆ ಲೋಕಲ್ ಜನಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡೋ ಕೊಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಶಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತಂತಿ ಮೇಲೆ ನಡೆದಂಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ರಾಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಭಯ ಆತಂಕ ನೀವು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ
ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಇಂಥ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಶುರುವಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಲ, ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಶುರು ಮಾಡಲ ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ 2-3 ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು. ಎನಿವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ, ಕನ್ನಡದ ಕಂಪು ಹರಡಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ. ನಾನೊಬ್ಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಕನ್ನಡಿಗ. ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ. ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಈ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆಸೆ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಅದನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ. ಅಟ್ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಿರಿಯವರು ಹೇಳಿದೊಂದು ಮಾತು, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಇರಲಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು. ಅವೆರಡೂ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಭಯನೂ ಇತ್ತು, ಭಕ್ತಿನೂ ಇತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಇಡೀ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಆ ಜನರೇ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ರು. ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟೇ ಓದ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜನ ಪುಸ್ತಕದ ಬದನೆಕಾಯಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಅವರೇ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಅದೊಂದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು ನನಗೆ. ಅದು ಇವತ್ತರೆಗೂ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನೋಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಆಚರಣೆ, ಅದೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಒಂದು ಸಮಾಜ ನಂಬುವಂಥ ವಿಚಾರ, ನಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವಿಚಾರ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪಚಾರ ಆಗಬಾರ್ದು, ಚ್ಯುತಿ ಬರಬಾರ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಜನ ಸಿನಿಮಾ ಥರ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೈವದ ವೇಷ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರೋದು, ಈ ಥರ ಜನ ಬಂದಾಗ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಂಬಿಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ದೇವರನ್ನು ನಂಬೋರಿರಲಿ, ನಂಬದೇ ಇರೋರಿರಲಿ, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಅವ್ರ ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಯಾರು ಹಾಳು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆ ಭಯಭಕ್ತಿಯಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇತ್ತು, ಆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು. ಆದಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಸರಿ ರೀತಿ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದೇನಂತಂದ್ರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಉಪ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಇರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಓಕೆ. ಒಂದು ನೇಚರ್ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಒಂದು ದೈವ ಇದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಕೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಈ ಫಿಲ್ಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತು ನನಗೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ so seeing the wonderful success of Rishabh Shetty sir, in fact we also wanted to know how his journey was, because as we know, coming from Karnataka, he struggled a lot. He had his own ups and downs in his life, and finally he proved that there is hope and there is hard work and there is passion which can lead a young filmmaker into a successful filmmaker like him. So Tyagarajan sir, this question is aimed at you. Sir, as a veteran producer for 2 generations, where your father has made many Indian films, Hindi films, and of course South Indian films. As a producer, as a responsibility towards the industry we feel, how do you think we can encourage and provide opportunities to young and upcoming filmmakers being a producer? I just want to give you an incident about Maniratnam sir. And Maniratnam sir did his management studies from XLRI, and I know him from young age, and I am also a management graduate from MBA. I had no intention of coming into cinema, but it is the passion for film which made me enter into films. And I met Maniratnam sir, and one day Maniratnam walked up to me and he said that he has a script. And I was surprised because being a management graduate, suddenly he walked up to me and he said that he wants to do films, he wants to direct a film. So he had an easy access to me at that point of time, and then we discussed the script, and then we did the film, and subsequently, he shot into fame and moved on to different languages, and he became a big director. Many young directors, budding directors, approach us for making a film, and it's a difficult task. I really understand that it is a very difficult task. And I was in Bangalore. I attended a festival organized by Innovative Film Academy. That was very interesting. Mr. Prasad sir is here, and I should really compliment their efforts, because in the film festival, they had organized,
small film competition with the help of Tamil Nadu Directors Association. They had approved several scripts and made budding directors to make film. They had provided budgets also, I think, and the best film makers were appreciated and they were awarded. It gave us an exposure. Being there, we met some of them. Some of the young film aspiring directors had very, very, very different thoughts, and I'm sure, you know, these kind of activities should be appreciated and should be developed in other languages also, like IFA. And IFA, as a matter of fact, You can ask question for it. Sir, you can ask the question to Mr. Rishabh. okay, sir. Question है मत पूछना. So basically, young filmmakers वो आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर यंग फिल्म मेकर्स, यंग स्टोरी मेकर्स आया तो आपको नए नए कहानी मिलते हैं. तो वो भी बहुत सारे लोग पूछते थे आप ज़रा मंगलोर बेस्ड स्टोरी क्यों करते हैं करके, क्योंकि मैं मंगलोर का हूँ, मैं कुदापुर का हूँ. जो मैं हर बार बोलता हूँ कि जो एक नॉर्थ इंडियन नॉर्थ कर्नाटक से एक आया तो वो आके उनका जो गांव का जो कहानी बताया, तो उनका जो टाउन की जो कहानी बताया, तो वो ऑथेंटिक रहता है. जो उसको क्या मालूम रहता है तो हमको पता नहीं रहता है. तो इसलिए मैं हर जगह से फिल्म मेकर्स, नए नए फिल्म मेकर्स आना चाहिए, वो लोगों को सपोर्ट करना चाहिए. और ऐसा कुछ आई थिंक प्रसाद जी ऐसे कुछ किए है, 10 फिल्म्स किए प्रसाद जी ने सब कोलैबोरेशन करके नए नए फिल्म मेकर्स को. एंड स्पेशली in my production also, I have done a film called Katha Sangama, and that 7 different stories रख के 7 different directors direct किए. उसमें एक डायरेक्टर था, उसका नाम है जयशंकर. एक लच्छावा करके एक शॉर्ट स्टोरी किया था. वो इस बार एक शिवमा करके एक फिल्म किया, वो मैं प्रोड्यूस किया हूँ. लास्ट टाइम वो फिल्म बाजार में सेलेक्ट हुआ, इस भूसान में भी वो जीत के आया फिल्म. सो ऐसा कुछ, वो एक रेगुलर फिल्म नहीं है, उसका जो कोपला का एक गांव का कहानी है, वो ऐसा एक्सप्लोर कर रहा है. ऐसा अपॉर्चुनिटी देना चाहिए बस. Your correct section. Yeah, sir, welcome to Goa, first of all. Thank you. Sir, if you see Goan Konkani language film industry is very much struggling. Sir, do you think it is because an average Goan is conversant in multi-languages, including English, Hindi, Marathi, as well as some other language? So, do you think, sir, that is the reason why languages in Konkani, means the movies in Konkani language is struggling? See, अभी तुलु फिल्म का भी हो सकता है एक स्ट्रगल, लेकिन जो तुलु फिल्म्स आज अच्छा चल रहे हैं उधर मैनुफैक्चरिंग लिमिटेड सेक्टर में, लिमिटेड स्क्रीन्स में. लेकिन सी इट्स नॉट अबाउट वन लैंग्वेज और वन रीजनल फिल्म्स. जो फिल्म में कहानियाँ क्या लेके आते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. लोगों को कनेक्ट होना चाहिए. सिर्फ हम लोग भाषा में किए हैं, वो लोग नहीं देख रहे हैं, वो रीजन में लोग नहीं देख रहे हैं, ऐसा बोल नहीं सकते हम लोग. जो आज ऐसा ग्लोबली जा रहा है कंटेंट, क्योंकि उतना ग्लोबली होना चाहिए कंटेंट. सो बहुत सारे लोगों को कनेक्ट होना चाहिए. वो हुआ तो वो स्ट्रगल का बात नहीं होता है. तो फिल्म मेकिंग में जो सीरियसनेस, वो टेक्निकली अगर आप अच्छे से एक कंपनी फिल्म किया तो लोग देखते हैं. क्यों नहीं देखते? एक मराठी फिल्म आई थिंक सायरट, तो हमको मराठी आता है क्या? तो करना में इतने अच्छे चला फिल्म, बहुत सारे लोगों को, सब लोगों को पता है सायरट क्या है. वैसा रहता है. तो कंटेंट ग्लोबली अपील होना चाहिए. वैसा एक कंटेंट लेके आके आप फिल्म किया तो डेफिनेटली रिच होगा. नमस्कार सर. नमस्कार. नमस्कार. ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಸರ್? ನಾವು ಕನ್ನಡಿಗರಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅವರು ಲೂಸಿಯಲ್ಲಿ, ನಾನು ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್, ಅವರು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರು. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಥಿಯೇಟರ್ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು. ಸರ್, ಕನ್ನಡಿಗರಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ವಿಜಯ್ ಸರ್. ಅದು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. ಸರ್, ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ, ನೀವು ದೇವರನ್ನ ನಂಬ್ತೀರಾ, ಆ ಕಲ್ಚರ್ನ ನಂಬ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಬಟ್ ಆಸ್ ಅ ರೈಟರ್, ಆಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ನಿಮಗೆ ದೇವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಿನಿಮಾ ಸರ್. ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಏನು ಸರ್? ದೇವರಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ.
ಸಿನಿಮಾ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನೊಂದು ಕೆರಾಡಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಒಂದು 500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಕೆರಾಡಿ ಅಂತ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸುತ್ತ ಬೆಟ್ಟ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಊರು, ಅದೇ ಕಾಂತಾರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರೋ ಲೊಕೇಶನ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನನಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ನನ್ನನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತೆ, ನನ್ನ ತೀರುತ್ತೆ ತೀರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತಂದು ನನ್ನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳೋ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ತದೆ ನನಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸಿನಿಮಾನ ದೇವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸರ್. So do you think the timing when the film was released also mattered? Because this is a time when eco-criticism and things like climate change are taking much uprise. So do you think the timing also mattered? Timing also matters in terms of अच्छा हॉलिडे मिला, लोग थिएटर आते हैं, तो उससे पहले लोगों को एक पिक्चर अच्छा है करके रीच होना चाहिए, इसको हमको पब्लिसिटी चाहिए और वर्ड ऑफ माउथ की स्प्रेड होना चाहिए. टाइमिंग ऐसा चाहिए कि अच्छा हॉलिडेज होना चाहिए तो प्रोड्यूसर को पैसा हो जाता है. अगर बाहर कुछ प्रॉब्लम है तो एक बेल बॉटम फिल्म रिलीज हुआ, हम लोग प्रीवियस डे प्रीमियर कर रहे हैं, उसी दिन बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था. ठीक है, बहुत सारे न्यूज चैनल में वही चल रहा था. इट्स इमोशनली वेरी हर्टिंग. लेकिन जो एक दिन छोड़ के, मतलब नॉट फ्राइडे, सैटरडे लोगों को वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड हुआ, बेल बॉटम फिल्म अच्छा है. तो उसके बाद सैटरडे इवनिंग लोग आने शुरू किए. 135 days इट्स रन थिएटर. सो आई थिंक लोगों को अच्छा आने का एक मौका मिलना चाहिए. फिल्म के बारे में भी वैसा ही उनको रीच होना चाहिए. Sir, do you had to take permission from Deva before starting the film? Everyone was thinking about the project. I did it. मैं वो किया था क्योंकि आई बिलीव इन इट. सो पहले मैं सीधा टेम्पल गया, धर्मशाला मंजुनाथ स्वामी टेम्पल. तो प्रोसीजर वैसे रहता है, उधर जाके आशीर्वाद लेके आके, और कावंजरू गए थे, हम दिल्ली गए थे वीरेंद्र हेगड़े जी को, उसे जाके बताया मैं ऐसा फिल्म कर रहा हूँ, क्योंकि वो सब रिचुअल जो है उधर कनेक्टेड है. तो क्या उसके बाद एक दैव कोल में गया, उधर मैं पूछा ऐसा कर रहा हूँ, आशीर्वाद चाहिए, वो करके मैं आया. स्टोरी जो आपने पोर्ट्रे किया है वो रियल स्टोरी है या मतलब कांतारा इज अ फिक्शनल वर्ड, ओके, लेकिन जो पाठदान में कहानी आता था और मैं क्या देखा था गांव में और क्या सुना था, ये सब मिक्स, कुछ रियल इंसिडेंट भी है, कुछ फिक्शनल भी है. एक रियल इंसिडेंट कुछ रख के मैं एक फिक्शनल वर्ड में कहानी बताया था. या थैंक यू सर. मैं एक्चुअली कमल हासन की बहुत बड़ी फैन हूँ, एंड नाउ आई एम योर फैन, एंड आई गेट टू सी ऑल ऑफ योर अदर फिल्म्स. But I think the most amazing part about this film is it starts off with a scream and ends with a scream. वो कुछ इफेक्ट था कि आपका खुद का आवाज था. वो कुछ स्क्रीन नहीं है, वो एक इमोशन भी बोल सकते हैं हम लोग, एक दैव का वाक्य भी बोल सकते हैं हम लोग. उसके पीछे बहुत सारे थिंग्स है, वो एक वर्ड में फ्रेम नहीं कर सकते. Right, sir. So the film actually has that mystery throughout, and it actually captures all elements within one story, and also brings all these tensions between tribal people, natural resources, and the state. And within that framework, you try to bring in so much of love, synergy, and humor. And I think that's the biggest thing about the film. And we look forward to many more such films from you. Thank you. Thank you, ma'am. ऋषभ जी यहाँ पर ऋषभ जी इधर. सर मेरा एक छोटा सवाल है. सबसे पहले आपके फिल्म पर एक टिप्पणी है जो कि फिल्म माध्यम के लिए उपयुक्त है, लेकिन ये फिल्म टिप्पणी है अद्भुत, अगम्य और अतर्क्य. बहुत बड़ा वर्ड हो गया सर, समझ नहीं आया. अभी आप जाते वक्त जब आप होटल पर जाएंगे तो प्लीज किसी से पूछ लेना. मैं वापस कह रहा हूँ, अद्भुत, अगम्य, तर्क के बाहर. एक छोटा सवाल है उससे जुड़ा हुआ है, वो जो वॉर क्रा है जो आप कह रहे, कितने बार आपको रीटेक करना पड़ा, कौन उसको अप्रूव कर रहा था, या आपने खुद उसको विजुलाइज किया था? हाँ, मतलब वो बताइए. दैवाराधन में वो मैं बहुत साल से देख के आया था. वो दैव का वाक्य जैसा रहता है. दैव जो आकर्षण होता है, मतलब एक स्पिरिट,
एक आदमी के अंदर आने के बाद ज़्यादा बात नहीं करते, ऐसा कुछ वो स्टेटमेंट भी होगा, एक इमोशंस भी होगा, एक वर्ड भी होगा, वो कनेक्ट होता है। देखो क्या बोल रहे, क्या कह रहे करके। वो शॉट तो हम लोग वो गुड़ी का पोर्शन 3 दिन 4 दिन किए, तो हर शॉट में वो करना था मुझे, और डबिंग 3 टाइम्स किया था मैं। तो वो रियल में क्या होता है, तो वो रिक्रिएट करने के लिए ट्राई किया मैंने। सो मतलब वो मैंने डिसाइड करना चाहिए, मतलब कौन करता है, मैं डायरेक्टर हूँ। सो मैं वापस फिर से सुन के वापस रीटेक करता था। Hello sir, my question is very socially that you showed untouchability in a very smart manner. So as a writer and director, what were your thoughts while showing untouchability and the Indian culture that slightly promote or promote casteism? What were your thoughts at that moment? मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर मैं ये कहना चाहता था फिल्म में वो सब कास्टिज्म हो, अपर कम्युनिटी लोअर कम्युनिटी, वो आना चाहिए नहीं आना चाहिए? नहीं, वो कल्चर का मतलब वो कल्चर का पार्ट है सर। मतलब ये एक 90s में मैं कहानी बताया था, उस समय जो क्या देखा था मैं, जो मेरा जो गांव में और मेरा घर में क्या हो रहा था, वो सब मैं फिल्म में क्या ना, वो जो स्मार्टली बोल रहे हैं ना, वो ज़्यादा दिखाया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो क्या है ना, अगर ये कन्नड़ा में लोग ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करते, क्योंकि डायरेक्टर्स और राइटर्स टेक अ बैक सीट, क्योंकि उतना ज़्यादा पूछते हैं। अगर दूसरा लैंग्वेज में जाके किया, जो अगर वेट्रीमारन सर ने किया, तो व्हाट अ बोल्ड फिल्म। अगर कन्नड़ा में किया, कन्नड़ा में लास्ट ऐसा फिल्म आया हुलिया, जो एक फिल्म आया था। तो ये सब इसके बारे में सोसाइटी में क्या होता है वो दिखाना पड़ता है, लेकिन लोग ऐसा देखना चाहिए, फिल्म जैसा देखना चाहिए। आपको क्या पॉजिटिव मिला तो लेके जाओ, नेगेटिव क्या है छोड़ के जाओ, ऐसा मैं सोचता हूँ, और ये सब दिखाना बहुत जरूरी है। First of all, thank you so much for making such a wonderful movie. Thank you. ನಾನು ಕುಂದಾಪುರದವಳೆ. ಹೌದಾ? ಪ್ರದೀಪ್ ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಸೂಪರ್ ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಹೇಳಿ. ಎಂತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಮೂವಿ ಇನ್ನೂ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಕುಂದಾಪುರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಿ ಈಗ. ಸರಿ ಸರಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಹೇಳಿ. ನಮ್ಮ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಮೂವಿ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮೂವಿ ಬಂದ್ಮೇಲಿಂದ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ನಾನು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿತ್ತು, ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೆ ಮೂವಿಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ 3 ಹೊತ್ತು. ಹೌದಾ? ಅಚ್ಚಾ, ನೈಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಇಮೋಷನ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವತ್ತು. ನಾವು ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ. ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮೂರ ರೋಡ್ ಹೆಂಗಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಕಾಡು ಬೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಆ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಸೆಟ್ ಯಾವ ತರ ಅಷ್ಟು ಸೆಟ್, ಅಷ್ಟು ಜನ, ಅಷ್ಟು ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? बेसिकली जो कैसे शूट किया है ऐसा पूछ रहे हैं। ಈಗಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರು, ಈ ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿ, ಅಪ್ಪರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಲೋವರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇವೆಲ್ಲ 90s ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಈಗ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಏನು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಇರಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ, बट नंबर याद भी है। हमारे जो अभी इस जनरेशन में वो सब जा रहे हैं अभी, मतलब ये अनटचेबिलिटी और अपर कम्युनिटी लोअर कम्युनिटी। जो मेरा घर में जो लोग काम करने आते थे वो सब लोग 100 से ज़्यादा लोग आके मेरा फिल्म को काम किए, मेरा साथ दिए। तो बहुत सारे दोस्त लोग हैं मेरा, हम लोगों को थॉट नहीं है ये अपर लोअर, उन लोगों का जो एफर्ट्स और हेल्प के हिसाब से हमको ऐसा एक फॉरेस्ट के अंदर में मेरा गांव है, मैं शूट कर सकता हूँ, मैं सुबह से शाम तक और रात भी वैसा ही चल के आता हूँ। मैं उधर बचपन से देखा हूँ मैं मेरा गांव को। लेकिन जो बैंगलोर से जो टेक्नीशियंस आए हैं उन लोगों को पता नहीं है कैसा फॉरेस्ट है क्या है करके, जो क्या क्या एनिमल्स है। वो रात को हम लोग शूट खत्म करके जाते तो लेपर्ड्स मिलते हैं उधर, तो ठीक है। लेकिन जो गांव वाले लोग इतने सपोर्ट किए हैं उन लोगों की वजह से हम लोग किए। ಸರ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಸರ್. ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೀಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಂತಾರ ಫಿಲ್ಮ್ ಯಾವ ಸೀನ್ ಫಾರ್ 10 times 10 ಬಾರಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. And again I want to see it for 15 times. Total age of people 25. That means you will become a student of the
I wish all the best. I will not ask any questions, but read my opinions. 10 times I have seen, each time I find a different genre. Generally, a movie is made with some genre, a horror film, a romantic film, or a fictional film, or divine film. And according to you, while making that movie, what kind of genre you want to put it in that movie? Because everything is relevant. I saw it in a different angle, genre. That is one. Secondly, I am planning to make a second part of Kantara because the planet scene, you are going to disappear. Are you going to disappear or? पता नहीं मुझे पता नहीं वो आपको छोड़ा था मैं मतलब वो मेरा आपको मैं that is for you only ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಏನು ಶಿವನ ತಂದೆ ಕೊಲೆ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಮಾಯವಾಗ್ತಾರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರ್ತೀರಲ್ಲ ಅವಾಗ ನೀವು ಸಹ ಕಾಯಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ ನೀವು ಮಾಯವಾಗ್ತೀರಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ ದೇರ್ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ and both of you are going to disappear and again coming in part 2. I don't know. For that, no comments. So, third opinion. And genre, आपने जो genre के बारे में पूछा, मैं सोचा भी नहीं था कौन सा genre में ये फिल्म है करके. सवाल about you, नहीं मैंने नहीं करे. Hello sir. The thing is, there is this saying in Sanskrit, "Yatha pinde tatha brahmande." The whole universe is in our body. And there are writers in the past like Khalil Gibran and Herman Hesse was being inspired by the Upanishads and all the scriptures that we have in India. And I've seen in my village as well that the same demigod concept. I've seen people seeing supernatural things that are real. At the same time, I've seen this thing that there is less acceptance within the India. Even I have felt when I was in meditation, I left my home for 50 days because of the higher consciousness level. So I've seen this thing that there is less acceptance in terms of in India of the concept that we are having. What do you feel like there's the lag in the society that we meme or we make memes or make jokes on certain things that we shouldn't have? मतलब अभी क्या है ना आगे जाते जाते हम लोग हमारा जो कोर क्या है हमारा रूट किधर है वो बोल के हम लोग ग्लोबलाइज और दूसरा इन्फ्लुएंस होके हम लोग जा रहे हैं लेकिन हमारा जो कल्चर है हमारा जो बिलीफ सिस्टम है वो फिल्मों में लेके आके लोगों को फिर हर बार हमको रिमाइंड करना बहुत ज़रूरी पड़ता है तो वो नेचुरली होता है मतलब अगर एक हमारा जो बिलीफ सिस्टम या हमारा कल्चर गया तो एक दिन वापस आएगा वो तो ऐसे साइकिल डोंट वरी अबाउट दैट सो हम लोग करना चाहिए मतलब फिल्मों भी करना चाहिए नमस्कार सर मेरा नाम विशाल है नमस्ते और मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ वैसे मैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ लंबे वक्त से एज एन एक्टर मेरा प्रश्न आपसे ये है कि मैं अभी नॉर्थ में गया था होम टाउन अपने तो वहाँ लोगों से मैं बात कर रहा था सबने मुझसे पूछा भाई कंतारा देखी मैंने कहा देखी कंतारा देखी हाँ देखी भाई देखी कंतारा देखी पर लोगों को कंतारा का मतलब नहीं पता तो मैं चाहता हूँ कि उसे आप डिफाइन कीजिए ताकि मैं अपने लोगों को बता सकूं भाई कंतारा का मतलब क्या है धन्यवाद बेसिकली कांतारा का मतलब है मिस्टीरियस फॉरेस्ट सो ना उतना तो मुझे ये नहीं है Rishabh sir. Yes sir. Sir, I have an important question. First for congrats sir. I'm Sujit and I'm a young filmmaker. Sir, even you agree that there was a phase from the 60s to 90s where such culturally rooted films were made. And then there was a change, there was transformation where again, you had films which were over the top and films were made that because people accepted that too. Now again, see, for every generation, couple of generations, the set of acceptance keeps changing because the set of films that we make keeps becoming obsolete and we expect freshness as viewers. So again, that phase has come where culturally rooted films like Kantara or Karnan from Tamil are widely appreciated. So obviously, I believe that there will be another point in time in future where this will again become obsolete and people will ask for something fresh.
So how will you tackle that point, and how do you see that? Basically, early 90s तक जो फिल्म्स आता था, कन्नड़ा में हमारे लेजेंड अन्ना और डॉक्टर राजकुमार एक मैथोलॉजिकल फिल्म भी करते थे और एक फैमिली ड्रामा भी करते थे और एक कमर्शियल एक्शन फिल्म भी करते थे और एक लेजेंडरी डायरेक्टर थे शंकर नाग सर ने वो एक बच्चों मुश्ती जैसा एक फुल ऑन एक्शन फिल्म करते थे, सेम टाइम मालगुडी डेज भी करते थे। तो क्या है कि एक बैलेंस होना चाहिए हम हर फिल्म इंडस्ट्री में, हर मतलब बहुत सारे ये ऑडियंस में दूसरे टेस्ट रहता है उनका। जो कुछ लोगों को एक फैमिली ड्रामा पसंद आता है, कुछ लोगों को एक्शन फिल्म पसंद आता है। लेकिन क्या है ना, ये 90s एक डेंजरस मोमेंट था। उस समय फिल्म्स ज़्यादा कमर्शियल बन गया, कमर्शियल इन टर्म्स ऑफ एक्शन फिल्म किया, एक राउडिज्म, एक अंडरवर्ल्ड, वो सब पीक में आया था उस समय। रियल में भी अंडरवर्ल्ड वैसा आया था जो लोगों को वो नए मतलब देखने के लिए फिल्म में अंडरवर्ल्ड दिखाया। तो अच्छा ये सब फिल्म किया तो जो लोग देखते हैं, एक फिल्म इंडस्ट्री में वैसा एक जजमेंट आया कि ऐसा कमर्शियल फिल्म किया तो लोग देखते हैं करके, वो एक सीजन था। लेकिन उधर से आगे हम लोग एफर्ट नहीं डाले कि हर तरीके हर जॉनर का फिल्म देखने वाले लोग हैं, ऑडियंस है, उन सब लोगों को हम लोग मानना पड़ता है, सब लोगों को हम लोग फिल्म्स बनाना पड़ता है। एक आर्ट फिल्म भी वैसा ही इम्पोर्टेंट है, एक कमर्शियल फिल्म भी इम्पोर्टेंट है। वो बैलेंस नहीं है तो वो इंडस्ट्री सर्वे में होता है। क्योंकि कमर्शियल फिल्म देखने वाले बहुत सारे ऑडियंस रहते हैं, वो प्रोड्यूसर्स अगर एक एक्सपेरिमेंट करना चाहिए तो एक उसको कमर्शियली सक्सेस होना चाहिए ना, तो इसलिए वो बैलेंस नहीं मिला तो ऐसा हो जाता है। सो आई थिंक ऑल टाइप ऑफ फिल्म्स वी हैव टू मेक, जो कंटेंट बेस्ड हो, एक कमर्शियल फिल्म हो, हर तरीके से फिल्म में हम लोग एक्सप्लोर करना चाहिए। So, I think it has been a wonderful session. I'm sorry ma'am, we are running out of time. We request, before we conclude this session, we request RISHABH Shetty sir for one final screen. Deva Vakya. No. That I will do, and please don't ask that, क्योंकि मैं अभी इतने सारे बात किए हैं हम लोग, मैं वो मानता हूँ, वैसे एक फैमिली से आया हूँ, वही रिक्वेस्ट है तो मत करो करके, वो स्क्रीन नहीं है। Thank you. Thank you, sir. So it was a wonderful session and a very big thanks. I would like to thank you, NFTC, IFI Goa, Satyajit Ray, and also Innovative Film Academy. I would like to invite Mr. Armstrong, sir, from NFTC, Ministry of Information and Broadcasting, Mr. Sarvana Prasad from Innovative Film Academy, and Mr. Linguswamy sir, who is a famous film director from South India, who has given some wonderful hits to South India. Ms. Parul, Mr. Ashwini Chaudhary, President for Vista Media Capital, and I thank everyone to organize this wonderful session. Thank you, RISHABH Shetty sir, for taking this very special time to come here and sharing all your experiences with everyone. Thank you, Tyagarajan sir. Thank you. Hey, Fadium, Ray. Oi. Oi, Ray. Sir, hello, sir. Sir, hello, sir. One more thing, Tyagarajan sir, thank you so much. உங்க கூட நான் உட்கார்ந்து பேசுறது ரொம்ப பெருமையா இருக்கு सर। तमिल सबको बदल सर तो एक टाइगर सर एक लेजेंडरी प्रोड्यूसर है, उनके साथ मिलके बात करना और आपके साथ मेरा थॉट, सर का थॉट सभी हम लोग डिस्कस किए। थैंक यू सो मच सर। ஒரே ஒரு என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் மணி சார் வந்து கன்னடால படம் பண்ணாரு சார், அது பெருமை எங்களுக்கு It was a failure.
ಹೌದು, ತುಳು ಕಾಂತಾರ ತುಳುವಲ್ಲಿ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ, 2 ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಮಾತಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಬರ್ತದೆ ತುಳುದು ಕಾಂತಾರ ತುಳು. Just the last word. The reason why the Ministry of Information and Broadcasting organized this for the young filmmakers, producers, distributors is to encourage young filmmakers who are new in this field. People like RISHABH is the one who can prove that you don't need 100 crores to make a budget movie. You don't need 100 crores to make a successful movie. So give it up for RISHABH once again. ஒரு படத்துல அந்த படத்துல லாஸ்டா ஒரு சவுண்ட் வரும்னு சொன்னாங்க. அந்த சவுண்ட மீறின ஒரு சத்தம் எல்லாத்தையும் மனசுலயும் வந்து